کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں، ہمیں نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ جو ملک کے خلاف ہیں، جو ہمارے ملک کو نقصان دینا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ لڑنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ ابھی تو میں ختم ہی نہیں کیا میں نے۔ نام بتاؤ۔ عظیم صدیقی، میں خیبر ٹی وی سے ہوں جی۔ پوچھنا اس وقت آپ سے یہ تھا کہ آل پارٹیز کانفرنس ہوئی جس کے حوالے سے عوامی تاثر یہ ہے کہ آپ اپنی ان تجاویز پہ ان کی حمایت حاصل نہیں کر سکے، یہ کیا پوزیشن ہے؟ اور کیا اور جماعتوں سے بھی آپ کے یہ جو معاونین آپ کے جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں رابطہ کر رہے ہیں، یا آپ ذاتی طور بھی اور جماعتوں سے رابطہ کریں گے کہ آپ کی ان تجاویز کی پذیرائی کی جائے؟ کہ آپ فوجی عدالتوں کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کورٹوں کو سزائیں ہوئی اور کتنے ججز میں ان دہشت۔ آپ کو کس نے مخالفت کر رہا ہوں؟ نہیں، آپ تجاویز دے رہے ہیں۔ میں تو تجاویز دے رہا ہوں، وہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم تو تجاویز دے رہے ہیں، ہم ملٹری کورٹس کو اپوز نہیں کر رہے، یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ پنجاب میں کتنے آپ کو سپورٹ مل رہے ہیں؟ سر آپ کے سوال کا جواب آ چکا ہے، آگے دوسرا سوال دیں۔ آپ نے اپنی ابتدائیہ میں کہا دہشت گرد جو ہے وہ کچھ پولیٹیکل فورسز کے ساتھ مل کر یہ سارے کام کر رہے ہیں، وہ آپ نے ابھی تک پولیٹیکل فورسز کا نام کیوں نہیں بتا رہے؟ جو پولیٹیکل ہیں تو پھر آپ پولیٹیکل خود ہیں، ان کے نام کیوں نہیں واضح کر رہے؟ نمبر 2، جو لوگ اخلاقیات کو نہیں مانتے، انسانیت کو نہیں مانتے، آپ ان کو قانون کے دائرے کی بات کرتے ہیں۔ سر سوال یہ ہے، ہم نے ملک کا کانسٹیٹیوشن بنانا ہے، ہم نے ہمیشہ کے لیے قانون بنانا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ان میں ایسے آ گئے ہیں جو کہ ڈیفائن نہیں ہو سکتے اس ڈیفینیشن میں ٹیررسٹ کی، تو ہم چاہتے ہیں کہ قانون ایسا ہو جس سے ٹیررزم کو بھی ڈیفائن کیا جائے، اور یہ ایک ڈیفینیشن بن جائے گی ٹیررزم کی۔ جہاں تک پولیٹیکل فورسز کا سوال ہے، اس میں آپ نکال کے دیکھ لیں کہ جو رینجرز کا قانون بنایا گیا ہے سندھ کے لیے، یا ان کو جو رائٹس دیے گئے ہیں سندھ میں، وہ دوسرے پروونسز سے کچھ مختلف ہیں۔ آپ کے پاس خود اس کی موجود ہیں کاپیاں، ہم کیا کہیں، آپ خود سمجھنے والے ہیں۔ شاکر سولنگی، میرا سوال اسی پہ ہی ہے کہ یہ جو نیا مسودہ حکومت نے کیا ہے، اس میں مذہب اور فکر کی بنیاد پر جو دہشت گردی کے الفاظ ہیں وہ نکال دیے ہیں، پچھلے مسودے میں تھے، تو اس پہ پیپلز پارٹی کے ریزرویشن پہ تھے، تو آپ کا موقف کیا ہے؟ یہ جو ایشو ہے، جو پہلے آئین کے اندر جو ترمیم کی گئی تھی، فاروق نائک صاحب بتا دیں گے، وہی چیز ہم نے پروپوز کی ہے۔ نہیں، وہ مذہبی دہشت گردی پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو مذہبی دہشت گردی کا اس میں شامل ہے نا؟ شامل ہے۔ یہ جو ہمارے پوائنٹس ہیں اس کا ان کی جو توازیز ہیں ان کے ساتھ۔ وقار ستی، السلام علیکم ستی صاحب۔ السلام علیکم سر، یہ بتائیے گا کہ کیا گارنٹی ہے کہ جو آپ دوسری دفعہ ایکسٹینشن دینے جا رہے ہیں کہ یہ سارا قانون سیاستدانوں کے خلاف استعمال نہیں ہوگا؟ بیٹا اس کی تو کوئی گارنٹی کوئی دے نہیں سکتا، اس لیے کہ لاسٹ ٹائم بھی ہمیں کیا کہا گیا تھا کہ جیٹ بلیک، اور جیٹ بلیک میں آ گیا ڈاکٹر عاصم، تو اس کا تو کوئی وہ نہیں ہے، ہم امید ہی رکھ سکتے ہیں۔ سجاد ترین اس کے بعد آپ ذرا ہولڈ آن، سجاد ترین لیڈی اینڈ دین یو۔ نیکسٹ الیکشن پلان پہ کام نہیں کیا، اسی لیے تو ہم نے 1 سال کا عرصہ رکھا ہے، اس کو ہم جج کریں گے، حکومت کو ہم فورس کریں گے کہ وہ وٹنس پروٹیکشن پروگرام میں بھی چلے،
फंड्स भी प्रोवाइड करे प्रोविंसेस को, जुडिशरी को, ताकि वो नेशनल एक्शन प्लान को सबको देखें कि उसके क्या रिजल्ट्स हुए हैं और क्यों उसमें कमज़ोरियाँ हैं। मेरी नज़र में कमज़ोरियाँ इसलिए हुई हैं कि हुकूमत वक्त संजीदा नहीं है और उनने उनको फंड्स प्रोवाइड नहीं किए हैं। पंजाब में ऑपरेशन हो रहा है रेंजर्स का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत अच्छी कह रही थी कि वहाँ पर स्टेट हेवन्स हैं और बैंड आउटफिट्स हैं, लेकिन उनके खिलाफ पंजाब गवर्नमेंट सिंपैथीज रखती है और ऑपरेशन नहीं करी। अब वो कह रहे हैं कि हम बिला तफरीक की ऑपरेशन कर रहे हैं। आप सेटिस्फाइड हैं? आप समझते हैं कि इसके रिजल्ट? मैडम मेरा ख्याल है कि आज बात सिर्फ इसी पर करें। बेटा आपने सवाल किया है तो मैं जवाब दे देता हूँ। मैंने भाई को जवाब दिया था। अगर आप नोटिफिकेशन निकाल लें जो रेंजर्स का हुआ है उसमें और सिंध के नोटिफिकेशन में तो फ़र्क है, वो नेट पे है, आप निकाल के खुद पढ़ लो। सवाल करके फिर बैठ जाओ जरा, होल्ड ऑन शाहिद बैठला। आसिफ अली जरदारी साहब, शाहिद बैठला है यहाँ न्यूज़ से। सर पीपल्स पार्टी के दो बड़े ब्रांड हैं, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी। मुझे ये बता दीजिएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी को आसिफ अली जरदारी की कैपिटलाइजेशन के तौर पर यूज किया गया, लॉन्च किया गया और मेन ब्रांच के तौर पर मेन लॉन्च के तौर पर यूज किया गया या एज लंकर उनको यूज किया गया, और मेन लीड कौन करेगा मुस्तकबिल में? मेन ब्रांड कौन है, आसिफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो जरदारी इन फ्यूचर? अच्छा बेटा, पहली बात तो ये सवाल इस मौके का नहीं है, मगर आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक ही सिंबल है। ब्रांड कौन सा है? ब्रांड कोई हम चाय बेच रहे हैं। CR शमसी, होल्ड ऑन यार, वन बाई वन CR शमसी। सबसे पहले तो वेलकम मेरा सवाल मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जो सजेशन दी है APC भी बुलाई, लेकिन इस दहशतगर्दी का एक पाकिस्तान का ताल्लुक जुड़ा हुआ है, बाहर जो इमेज बना हुआ है पाकिस्तान का, और कहा जा रहा है कि कुछ सरहदों से भी मुदाखलत होती है, और वो दुनिया में जो हमारी खारजा पॉलिसी है वो भी एक सूदमंद साबित नहीं हो रही है। आप साबिक सदर की हैसियत से क्या तजवीज़ करेंगे कि पाकिस्तान का जो तशक्कुस बाहर खराब हो रहा है और जो मुल्क के अंदर जो चीज़ें हैं इनको क्या तजवीज़ करेंगे कि अपनी खारजा पॉलिसी के बुनियादी ढांचे में क्या तब्दीलियाँ लाई जाए? सर पहले तो शमसी साहब आपको पता है कि आप भी सियासत को 40 साल से देख रहे हैं, मैं भी 40 साल से आपके साथ जवा हुआ हूँ सियासत में ही देखते हुए। मैंने तो ऐसी हुकूमत कभी नहीं देखी जिसका फॉरेन मिनिस्टर ही ना हो, आज तक मैंने नहीं सुना। फिर पता नहीं मियाँ साहब को शायद खौफ है कि अगर पंजाब से कोई दूसरा बंदा फॉरेन मिनिस्टर बन गया तो वो पॉपुलर हो जाएगा या उसकी कोई पोजीशन बन जाएगी, वरना कोई रीज़न नहीं है कि पाकिस्तान में फॉरेन मिनिस्टर ना हो। और फॉरेन मिनिस्टर की ये पोजीशन है कि आप समझें कि दैट इज़ द फ्लैगशिप, वही बात करता है, वही इंटरेक्ट करता है। इजाज भाई इतने तो नाराज मत हुआ करो यार। आपने ये फरमाया कि आप फौजी अदालतों की हिमायत नहीं कर रहे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने APC के बाद बाहर आकर ये कहा कि पीपल्स पार्टी अपोज टू द मिलिट्री कोर्ट्स। ये तजाद क्यों है? और दूसरी बात यह है कि अगर हुकूमत आपकी तजावीज़ नहीं मानती तो फिर आप क्या सेनेट में हुकूमती जो आएगी तरमीम उसको ब्लॉक करेंगे? एजाज ये मैं बता दूं कि चेयरमैन साहब ने ये कहा था कि हम उसूली तौर पर जमहूरी निज़ाम में फ़ौजी अदालतों के मुखालिफ हैं, लेकिन अगर ये नागुज़ीर हो तो फिर हमारी तजावीज़ जो तजावीज़ सवाल का जवाब दे दें कि अगर आपकी तजवीज़ नहीं तस्लीम करती हुकूमत तो फिर अगेन वो आपकी सवाल जो है ना इफ एंड बट्स पे जब होगा ऐसा तो उसका रिएक्शन आप देखिए। शफकत फ्रॉम नेशन, शफकत अली। मैं जो पूछना चाह रहा था डायरेक्टली सॉरी लिंक नहीं है मेरा मंसूर, काफी अर्से से बातचीत हो रही है आपके बाई इलेक्शन के कब होगा, तो उसके बारे में काफी राब्ता करता है आपके लीडर जो भी पार्टी के हैं। चेयरमैन साहब कह चुके हैं इस पे, मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब इस पे जवाब दे चुके हैं। अहमद मंसूर एक्सप्रेस न्यूज़ से ताल्लुक अहमद मंसूर नाम है। अच्छा अब आपका हुई थी बीएन हाउस में, तो ये काफी देर से दाखिला ने आपके लिए तारीफ के लिए लिखी कि आपका किरदार है फौजी अदालतों के हवाले से और कंसेंसस के हवाले से,
तो अब फिर जब ये मामला आया तो हुकूमत अब उस तरह एक्टिव नजर नहीं आ रही, प्रो एक्टिव। आपके साथ क्या राब्ते होने किए या उस तरह किए कि आपको संजीदगी उनकी नजर आ रही है? अगर नहीं तो वो भी अगर नहीं चाह रहे और आपकी तरफ से तजावीज़ ऐसी है कि कोई डालते कहीं आपस में कोई इसमें मुताबिकत है पीपल्स पार्टी और नून लीग की पॉलिसी में? मैं तो समझता हूँ कि नून लीग जो है वो सीरियस है ही नहीं। पहले भी हम गए, हमने जाके सब दोस्तों को गारंटर बन के और हमने ये कानून पास कराया। उस वक्त भी दोस्त काफ़ी पॉलिटिकल फोर्सेस तैयार नहीं थी, मगर मैंने अपना पॉलिटिकल कैपिटल यूज़ किया, दोस्तों की मिन्नत समाजत की और उनसे मैंने ये कानून पास करवाया। अभी तो हुकूमत को ने मेरा ख्याल है इस पे उन्हें बॉदर ही नहीं किया है कि मुझसे कांटेक्ट करें, तो अगर उन्हें परवाह नहीं तो मुझे क्यों होगी? इनका सवाल है। दहशतगर्दी के खिलाफ जो फौजी हल है हमारा ऑपरेशन दर्जा भी हुआ, फौजी अदालतें भी बनी, अभी भी आप तजावीज़ लेकर आए फौजी अदालतों के हवाले से, लेकिन जो सिविलियन का काम है नेशनल एक्शन प्लान वाला, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। उसके हवाले से आपके पास क्या तजावीज़ है? आपकी पार्टी नेशनल एक्शन प्लान पर अलग अमल दरामद कराने के लिए हुकूमत पर दबाव क्यों नहीं डाल रही? हम डाल रहे हैं, इसलिए तो आपसे बात कर रहे हैं और हम कह ये रहे हैं कि ये हुकूमत का एक फेलियर है जिसमें हुकूमत ने बजट नहीं दिया है। मुल्तान रोड जो है वो 3 दफ़ा टूटती है लाहौर में, 17 बिलियन में बनती है और 3 दफ़ा टूटती है, उसके लिए पैसा है। मगर नेशनल एक्शन प्लान जो सिक्योरिटी प्लान है, जो आपके बच्चों का फ्यूचर है, जो प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान को स्टेम कर रहा है, आप सोचें कि आज कराची जो है वो सबसे बड़ा पख्तून शहर है। ये बेचारे पख्तून जो हैं वो KPK से, पेशावर से जलावतन होके वहाँ जाके बैठे हैं, मजबूरन दे आर इमिग्रेंट्स ऑफ इकनॉमिक्स, वहाँ रह नहीं सकते, इकनॉमिकली सर्वाइव नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ आए हुए हैं। जब भी ईद होती है तो आप देखें वो एक ज़माने में बसों पे आए करते थे और कहते थे हम मुल्क जाती है, तो अब भी उनको अगर मौका मिले और अमन आ जाए KPK में तो वो दोबारा वापस आके अपना बिजनेस KPK में करें। आप भी और बिलावल साहब भी भाई इलेक्शन लड़के पार्लियामेंट में। सर आपने सुना नहीं, इन भाई ने ये क्वेश्चन किया है एंड आई हैव आंसर्ड इट। ऑलरेडी मुखालफत की है, पहले भी कि हुकूमत ने पूरा अमल दरामद नहीं किया इस पे, तो पीपल्स पार्टी अगर अभी 1 साल की तोसी और भी दे रही है तो इस हवाले से वो क्यों दे रही है? पहले भी हुकूमत तो उसमें नाकाम हो चुकी है, आप क्या कहेंगे इसमें? देखिए ना, हमारा काम अपनी फौजों को, अपनी फोर्सेस को डिसहार्टन नहीं करना है, अपने शहीदों का हमने खिराज इनसे लेना है, ये जो टेररिस्ट हैं इनका मुकाबला करना है। अगर ये नेशनल एक्शन प्लान फेल हो गया है तो हमने दोबारा उसको मजबूत करके लाना है और आप दोस्तों की मदद से इन पे दबाव डालना है कि उसको चला सके। सर सुहेल खान दुनिया साहब ये बताइए कि ये जो अफगानियों की यहाँ पाकिस्तान में स्टे में मुसलसल तारीख में तोसी की जा रही है, इस पर पीपल्स पार्टी अभी तक खामोश है। और दूसरा मेरा सवाल है कि IDPs का जो मामला हमने बहुत हद तक हल कर लिया था, अभी वो पूरी तरह गए नहीं है, इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? कहा यह जाता है कि दहशतगर्दी में ऐसे लोग भी मुलव्वस हैं। सर हमने तो अपने ज़माने में जो स्वात ऑपरेशन किया या फिर के आज़ाद जो जिसे कहते हैं कि आप ट्राइबल एरियाज़ हैं उनमें ऑपरेशन किया, उनके जितने भी IDPs थे उनको हमने वापस भेजा। आपने देखा कि स्वात वालों को हमने वापस भेजा, वो 1 मिलियन लोग थे, कम नहीं थे, और वो वापस पहुंच के अपने घरों में मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं। अगर ये हुकूमत होल्ड ऑन नो लास्ट 3 क्वेश्चंस आप करें, आप सॉल्व करें। ये पूछना चाहता हूं कि क्या पीपल्स पार्टी ने फौजी अदालतों की मुद्दत 1 साल इसलिए तजवीज़ की है कि आइंदा इलेक्शन जब हो तो फौजी अदालतों का वजूद ना हो? नहीं, हमारा मकसद है कि ताकि हुकूमत पे जोर डाला जा सके
ताकि वो नेशनल एक्शन प्लान के लिए जो बजट है, जो पैसे हैं, जो कि अब इनको याद आ रहा है कि जजों के लिए गाड़ियाँ होनी चाहिए, बम प्रूफ गाड़ियाँ होनी चाहिए, ये तो पहले दिन सोचना चाहिए ना कि अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो सफ़र का सामान साथ होना चाहिए, इनको पहले करना सर ये बताएं कि सूबा पंजाब भी आपके पास नहीं है, सूबा बलूचिस्तान भी आपके पास नहीं है। सर आपके पास जादू का चिराग है कि आप दोबारा गवर्नमेंट अपनी बनाएंगे? सर मेरे पास पाकिस्तान है। इसके बाद आप हैं। तो मेरा सवाल पार्टी की तंजीम नौ के हवाले से, आप पंजाब में आपने कहा कि दोबारा पार्टी को रिवाइवल कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि जो कोशिशें भी की गई थी वो हमें कम नजर आ रही हैं, और अभी भी माजी की तरह जो थ्रेट है वो क्या अभी भी आप देख रहे हैं बिलावल भुट्टो के लिए, साथ ही साथ जो कबायली अवाम के लिए अभी रिफॉर्म्स की गई हैं और उनको वापस कौमी दायरे में लाने की हुकूमती कोशिश है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? सर हमारा मकसद ये है और हमारी पोजीशन भी ये है कि इट शुड बी नॉर्मल प्रोविंस। जितने भी KPK की हुकूमत है पहले उससे पूछा जाए, उसको कंसल्ट किया जाए, उनको साथ लिया जाए, और ये अपने तरफ से ने ड्राफ्ट दिया है जिसमें गवर्नर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स दिए हैं और 32 जाली सीटें बना दी हैं, ये नहीं चलेगा। जो काम किया जाए वो परमानेंटली किया जाए, एंड वी आर इन दी with the opinion that there should be a province by including all of the frontier regions into KPK. Last question, last question वो है। Now hold on, वो last question please. मेरा सवाल ये है कि आपने 5 साल हुकूमत की और 5 साल में जिस तरह के लोगों को पीपल पार्टी में शामिल करके मिनिस्ट्रियों पर बिठाया, उससे 2013 के इलेक्शन के नतीजे हमारे सामने आए, जिस तरह की पीपल पार्टी का इन फैसलों ने बेड़ा गर्क किया। और आज एक बार फिर पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोगों को पीपल पार्टी में शामिल किया जा रहा है जो पीपल पार्टी के लोगों को मारते रहे हैं, कत्ल करते रहे हैं, थोड़े मरवाते रहे हैं। अब ये इस सवाल का तो प्लीज इसका तो ताल्लुक प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं है। होल्ड ऑन, नहीं आप बेशक कर लें सवाल, लेकिन इस सवाल का ताल्लुक नहीं बनता प्लीज, इसलिए इसकी जगह पर आप सवाल कर लें। प्लीज आप हो गया चीफ जस्टिस साहब जो है वो जज मुकर्रर करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उसका नाम का जो इशू तो नहीं आएगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो है जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट से आए। I didn't follow your question. बात ये इस अदालत में सेशन जज या एडिशनल जज along with मिलिट्री ऑफिसर और उनकी तकर्री मिलिट्री कोड का अंदर पहले भी हम मिलिट्री कोड्स देख चुके हैं। आपकी उम्र कम है, हमने वो कोड्स देखे जिसमें जज भी बैठता था और अफसर भी बैठता था। आप मुलाहिजा कर रहे थे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना था कि हुकूमत का फाटा से मुतालिक बिल नहीं चलेगा, फाटा से मुतालिक KP हुकूमत से जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने 1 साल मुद्दत की तजवीज़ हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए दी, जजेस के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियों का पहले सोचना चाहिए था। हमने दहशत गर्दों से अपने शहीदों का खिराज लेना है। लाहौर की मुल्तान रोड के लिए पैसा है लेकिन नेशनल एक्शन प्लान के लिए नहीं है।